नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं भूमि चापानेर। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तोकते तूफान के चलते पहाड़ी तहसील हाई अलर्ट में, किनारे विस्तार पर स्थित लोगों को किया जा रहा है स्थलांतर। तूफान की आगाही के चलते दीव कलेक्टर सलोनी राय ने बुलवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। संघ प्रदेश के वहीवटी तंत्र द्वारा तोकते तूफान के चलते सावधानी बरतने हेतु लिए गए कई तरह के निर्णय। वलसाड़ जिले के पहाड़ी पंथक में तोकते तूफान की वजह से जोरों से हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। तोकते तूफान के चलते पहाड़ी तहसील का वहीवटी तंत्र हाई अलर्ट में, किनारे विस्तार पर स्थित लोगों को स्थानांतरित किया गया। तोकते तूफान के चलते पहाड़ी तहसील के वहीवटी तंत्र द्वारा उमरसाड़ी, माछीवाड़, कोल्लक, उदवाड़ा जैसे कई समुद्र किनारे के विस्तार के गांवों में हाई अलर्ट के चलते अंदाजित 500 जितने लोगों के लिए शेल्टर होम मकानों की व्यवस्था की गई। समुद्र किनारे के विस्तार के लोगों को स्थलांतर के लिए पहाड़ी तहसील के TDO ST पटेल, मामलतदार NC पटेल, पहाड़ी पुलिस स्टेशन के PSI BN गोहिल की टीम ST बस लेके उमरसाड़ी माछीवाड़ पहुंचे थे। आसपास के सभी संभावित प्रभावित विस्तारों के लोगों को पहाड़ी प्रजापति वाड़ी या संबंधियों के पक्के मकान में रहने की व्यवस्था की जाने की बात बताई। वहीं उदवाड़ा और कोल्लक गांव के लोगों के लिए उदवाड़ा, रेटला और शांताबा स्कूल में व्यवस्था की गई है। यह लोगों के लिए फूड पैकेट की व्यवस्था वहीवटी तंत्र द्वारा की गई है। तोकते तूफान का सामना करने की तैयारी में वलसाड़ जिला पंचायत के पूर्व प्रमुख जितेंद्र भाई टंडेल, सरपंच हेमलताबेन टंडेल और उप सरपंच अजीज कोलकर ने गांव के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और माछीमारों को भी सतर्कता बरतने के लिए बताया। यह तोकते तूफान की वजह से 36 जितने घरों को स्थलांतरित किया गया है और इस आगाही के चलते शाम 8 बजे से 11 बजे तक यह तूफान यहां से गुजरने की संभावना है। વાવાઝોડાના જે સંભવિત આપણા 1 કિલોમીટર 2 કિલોમીટરની અંદર આવેલા વિસ્તારો છે, ઉમરસાડી, માછીવાડ છે, ઉદવાડા છે, કોલક છે, ત્યાં ગઈકાલે બપોરથી સૂચના આપેલી હતી બધાને ગ્રામજનોને કે ત્યાં પોતાના સ્વજનો પરિજનોના ત્યાં જે પાકા મકાનો કોન્ક્રીટના આવેલા છે એમાં શિફ્ટ થઈ જાય, અને જો જેના ઘરે વ્યવસ્થા ન હોય એના માટે આપણે 3 સેન્ટર બનાવેલા છે। ઉદવાડા કોલકના જે રહીશો છે એમને રેન્ટલા ભગીની સમાજની સામે ઇંગ્લિશ મીડિયમની સ્કૂલ આવેલી છે, શાંતાબા, ત્યાં શિફ્ટ કરવાની વ્યવસ્થા કરેલી છે। અને ઉમરસાડી વિસ્તારના રહીશો માટે ત્યાં જે લોકોને શિફ્ટ કરવામાં આવે છે ત્યાં સ્થાનિક તંત્ર અને જે નજીકની ગ્રામ પંચાયતો છે અને બીજા જે NGO એમને સાથ સહકારથી એમને જમવાની અને ભોજનની વ્યવસ્થાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મોટાભાગના લોકો પોતાના સ્થાનિક અને પરિવારજનોના ત્યાં જ ગામમાં સ્થળાંતર થયા છે। જે લોકોને આપણે સરકારી ફેસિલિટીઝમાં રાખ્યા છે ત્યાં એમના માટે સ્થાનિક તંત્ર વ્યવસ્થા કરે છે। ભારત સરકારના મોસમ વિભાગ અને ગુજરાત સરકારના આદેશ મુજબ જે તોકતે વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે તેમાં ગઈકાલ સાંજથી જ થોડો પવન અને વરસાદ ફૂંકાયો હતો। એમાં અમારા કોલ્લક ગામે સાંકરી કાંઠામાં એક ગરીબ આદિવાસીનું ઝૂંપડાને પણ અસર થઈ હતી, અને એના પગલે અમારા ગામના સરપંચ શ્રીમતી હેમલતાબેન, ડેપ્યુટી સરપંચ અજીઝભાઈ અને વિશાલભાઈ તલાટી સાથે મળીને કાંઠા વિસ્તારમાં રહેતા તમામ માછીમારોને સજાગ કર્યા છે અને એમને સૂચના આપવામાં આવી છે કે તમે અહીંથી સલામત સ્થળે કે તમારા કોઈ નજીકના ઘરો, તમારા કોઈ રિલેટિવમાં હોય તો ત્યાં જઈ શકો છો, અથવા તો તમને કોઈ વ્યવસ્થા ના હોય તો ઉદવાડા સ્ટેશન ઉપર જે શાંતાબા સ્કૂલમાં છે એમાં સરકાર તરફથી તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, એટલે તમામને જાણ કરવામાં આવી છે। અને હાલમાં 36 જેટલા ઘરો એમના જે પરિવાર છે, એમના સગાવાલા છે, એમને ત્યાં એ લોકો સ્થળાંતર કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે। અને સરકારમાંથી જે વલસાડ જિલ્લામાંથી કલેક્ટર સાહેબ, DDO સાહેબ, પ્રાંત અધિકારી સાહેબ, મામલતદાર સાહેબ તમામ અહીંયા વિઝિટો લઈ રહ્યા છે, અને પોલીસ સ્ટાફ પણ ઝાલા સાહેબ, ગોહિલ સાહેબ બધા જ અહીંયા હાજરી આપી છે। અમે કાલે બપોરથી કોલ્લક ગામના દરિયા કિનારા પર અમારા સ્વયંસેવક છોકરાઓ છે એ છોકરાઓ સાથે ખડે પગે ઊભેલા છે, અને સરકારશ્રીના દરેક અધિકારીઓ પણ અહીંયાની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે। અને અમારા જે સ્વયંસેવક છોકરાઓ છે એ લોકો
કાલે રાત્રે પણ લાઇટ માટે અમારે ઘણી હેલ્પ કરી અને કાલે અમારો પાવર ચાલુ કર્યો છે. કાલે સરકારશ્રીએ જે આદેશ આપેલો છે એ આદેશ મુજબ સંપૂર્ણ અમે તૈયારી કરી ચૂક્યા છે અને ગામમાં રિક્ષામાં માઇક બાંધીને વારંવાર ગામને જાહેરાત કરી રહ્યા છે કે સુરક્ષિત રહો અને ઘરમાં રહો. હા, આજે જે વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે એના માટે અમે પૂર્વ તૈયારી માટે ગામના અમે 20-25 યુવકો સ્વયંસેવકો તરીકે એટલે કે કોરોના વોરિયર્સ તરીકેની સેવા બજાવી રહ્યા છે. અને જ્યારે પણ આજે અમને ફોન કરીને જ્યારે પણ કંઈ પણ મેસેજ આપે એટલે અમે તરત જ અમે સત્વરે પહોંચી જઈએ છીએ. ત્યારે પંચાયતમાંથી ફોન આવે, સરપંચનો ફોન આવે, જીતુભાઈનો ફોન આવે કે કંઈ પણ હોય ત્યારે 20-25 છોકરા એવા છે કે ફટાફટ ત્યાં હાજર થઈ જાય અને પૂર્વ તૈયારી સાથે આજે ગામમાં આખા ગામમાં 2 થી 3 વાર માઇક દ્વારા પણ ગામ લોકોને જાગૃત કર્યા છે. અને ફરી પાછા આજે સવારે બધા અને સરકારી અધિકારી પણ અમારી બધાની મુલાકાત લે છે અને વારંવાર અમે એના માટે બધાને જેવી રીતે સહકાર આપી શકીએ પૂરેપૂરો અમે सहयोग आप रहे हैं. तौकते तूफान को लेकर दीव कलेक्टर सलोनी राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लोगों को सावचेती बरतने के लिए अपील किया. तौकते तूफान को लेकर दीव कलेक्टर सलोनी राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर सावचेती रखने के लिए लोगों से अपील की. उन्होंने बताया कि दीव में बड़ी ही तीव्रता से आ रहे इस तूफान से लड़ने के लिए प्रशासन तत्पर है. तौकते तूफान को लेकर दीव में एनडीआरएफ की टीम साथ ही 100 जितने आर्मी के जवान भी तैनात होंगे. साथ ही बताया कि तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से आया तो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाएगी. साथ ही समुद्र किनारे के विस्तार को खाली करवाकर लगभग 250 जितने परिवारों को सेंटर होम में ले जाया गया. हॉस्पिटल्स में कोविड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी है. वहाँ पे पावर बैकअप के डबल अरेंजमेंट्स किए गए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे सिलेंडर्स भी अदर देन सेंट्रल लाइन हमने एक्सेस सिलेंडर्स भी वहाँ पे हर बेड के साथ एक बैकअप सिलेंडर वहाँ पे रखा है ताकि किसी भी तरह का कोई भी पावर फेलियर अगर होता है तो किसी भी पेशेंट की ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी नहीं हो. डॉक्टर्स की ड्यूटी भी आज से लेके अंटिल फर्दर ऑर्डर्स हमारा पूरा स्टाफ और सारी डॉक्टर्स की टीम ऑन ड्यूटी रहेगी जब तक ये साइक्लोन बी को क्रॉस करके सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं. आज शाम को 8 बजे इसका लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है जिसमें 150 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन हिट करेगा और कई लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है, घरों में पानी भर सकता है. इसलिए जो भी ऐसे कच्चे घर थे या जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है ताकि वहाँ पे कहीं पे पानी अगर भरता है तो वो साइक्लोन खत्म होने के बाद निकल जाए और किसी भी तरह का ह्यूमन लॉस या किसी भी तरह का एनिमल लॉस ना हो. इसलिए लोगों से अपील है कि वो या तो अपने किसी अगर उनके कोई और पक्के घर हैं जो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है वहाँ शिफ्ट हो जाए या जो सरकार की तरफ से 6 शेल्टर कैंप शुरू किए गए हैं वो वहाँ पे इमीडिएटली शिफ्ट हो. संघ प्रदेश दमन एवं दादरा नगर हवेली के वहीवटी तंत्र द्वारा तौकते तूफान के चलते सावधानी बरतने के लिए कई निर्णय लिए गए. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन के वहीवटी तंत्र तौकते तूफान के चलते सावधानी बरत रहे हैं और उनके द्वारा तूफान का सामना करने के लिए तैयारी भी की गई है. दादरा नगर हवेली वहीवटी तंत्र, एनडीआरएफ की टीम, फायर विभाग, पुलिस विभाग और इलेक्ट्रिसिटी विभाग, यह तमाम विभागों की तैयारी देखने को मिली. तूफान को ध्यान में रखते हुए दादरा नगर हवेली प्रशासन ने भी नगर पालिका विस्तार और आसपास के विस्तारों में सावचेती बरतने का आदेश दिया. साथ ही स्थानिक अग्रणियों द्वारा लोगों को घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई. देखिए, हमारा जो दादरा नगर हवेली प्रशासन है
ये बहुत ही सक्रिय प्रशासन है। इसमें हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, आरडीसी साहब हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे मोहित मिश्रा जी हैं, ऐसे हमारे जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं, एसपी साहब हैं, सारे अधिकारी लोग हैं, काफ़ी सक्रिय हैं और कोरोना के मामले में भी काफ़ी सक्रिय थे और सक्रिय हैं भी। इसी का परिणाम है कि हमारे दादरा नगर हवेली में कोरोना की महामारी का प्रकोप इतना नहीं बढ़ा जितना और दूसरे प्रदेशों में बढ़ा हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि जो चक्रवात की घोषणा हुई है, टीवी और दूसरे संचार माध्यमों से मालूम पड़ रहा है कि दादरा नगर हवेली, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में मतलब इसका चक्रवात का प्रकोप रहेगा। उसको लेके हमारा प्रशासन, हमारा म्यूनसिपालिटी के लोग काफ़ी सक्रिय हैं और जहाँ भी है समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। NDRF की टीम भी आ गई है जो लोगों की मदद के लिए तैयार है। हमारा सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा करके घर से नहीं निकलें और जितना भी सुरक्षित रहें, अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखें और ज़रूरत पड़ने पर समाज के और वलसाड जिले के पाडी पंथक में तौकते तूफान के चलते जोरों से हुई बारिश। वलसाड जिले के पाड़ी पंथक में रविवार दोपहर 2 बजे के आसपास हवामान की तौकते तूफान की आगाही के चलते जोरदार पवन के साथ बारिश हुई। बारिश पाड़ी तहसील के वागछिपा, सुखेश, बालदा, रेटला, उमरसाड़ी, माछीवाड़ और आसपास के गांव में हुई। जोरदार पवन के साथ बारिश होने पर बिजली भी चली गई थी और वीज स्तंभ टूटकर रास्ते पर गिरे। हालांकि इससे कोई जानहानि नहीं हुई। वहीं पाड़ी नाडकर्णी अस्पताल की बिल्डिंग के छपरे हाईवे के सर्विस रोड पर गिरे, जहां एक कार चालक का चमत्कारिक बचाव हुआ। बाद में मामलतदार NC पटेल और PSI BN पटेल को इस बात की खबर होते ही यह रास्ते पर गिरे छपरे उठवा लिए गए थे। इस बिन मौसम बारिश के चलते आम के उत्पादन को नुकसान होने की संभावना भी दिख रही थी, जिसके चलते किसानों में चिंता का माहौल था। थोड़े समय के लिए बारिश का मौसम शुरू हो गया हो, ऐसा वातावरण देखने को मिला। अब समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड, डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद स्वागत है। कपराड़ा तहसील में तौकते तूफान की असर के चलते हुई बारिश, कई घरों के छपरे उड़ गए। हवामान विभाग द्वारा दी गई तौकते तूफान की आगाही के चलते कपराड़ा तहसील के बाबर खड़क, वड़थंबा, नाना पोंढा जैसे कई गांवों में बिजली की कड़क और जोरदार पवन के साथ बारिश हुई। अचानक हुई इस बारिश की वजह से आम के उत्पादन को नुकसान होने की संभावना से किसान भाइयों में चिंता का माहौल है। इस तौकते तूफान की वजह से बारिश होने पर कई जगहों पर पेड़ और वीज स्तंभ टूटकर गिरे और कई घरों के छपरे भी उड़ गए। अचानक हुई इस बारिश की वजह से वीज प्रवाह बंद कर दिया गया और इस बारिश की वजह से सभी विस्तारों में ठंडक फैल गई।
धर्मपुर में तौकते तूफान को लेकर जोरदार पवन के साथ हुई बारिश की वजह से बिजली का प्रवाह बंद किया गया। धर्मपुर तहसील के बिरवल गांव में तोकते तूफान की असर से जोरदार पवन के साथ बारिश हुई। बहुत ही गर्मी के माहौल में अचानक से जोरदार पवन के साथ तहसील के कई गांवों में बारिश हुई। बारिश की वजह से विस्तार में वीज प्रवाह बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वैसे बारिश की वजह से विस्तार में ठंडक फैल गई थी। पार्टी वकील मंडल के एडवोकेट नीलेश पटेल का कोरोना से हुआ अवसान। पार्टी के वकील नीलेश भाई गमन भाई पटेल को कोरोना होने की वजह से उनका सूरत के संजीवनी अस्पताल में इलाज चल रहा था। लंबी सारवार होने के बाद अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके अवसान के बाद पार्टी के वकील मंडल में शोक का माहौल छाया हुआ है, जहां गुजरात काउंसिल के सदस्य, वलसाड़ जिले के वकील मंडल के प्रमुख पीडी पटेल, साथ पार्टी वकील मंडल के प्रमुख धर्मीन भाई शाह और सभी वकील परिवारों द्वारा नीलेश भाई की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को भगवान इस कठिन समय से बाहर निकलने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना के साथ श्रद्धांजलि दी। दमन के श्री कृष्णा श्रेय कंपनी के पास मिली एक अज्ञात पुरुष की लाश, जिसका अभी तक कोई संबंधित नहीं मिला। 13 मई 2021 को करण शिव कुमार साकिया, उम्र वर्ष 21, मंछा एम्पायर फ्लैट नंबर 303, मशाल चौक, नानी दमन का रहवासी है और मूल चंदनपुर यूपी का रहवासी है, जिसने कोस्टल पुलिस स्टेशन कड़ैया नानी दमन में अपना रिपोर्ट लिखवाया कि वह अपने पिताजी के पास पांचाल उद्योग नगर भीमपुर स्थित पायल कंपनी में जा रहा था। उसी दरमियान श्री कृष्णाश्रय कंपनी के दाएं तरफ एक अज्ञात व्यक्ति को अचेत हालत में देख उसने पुलिस को इस बात की खबर दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा 108 बुलवाई गई और उस समय व्यक्ति की जेब की तलाशी लेने पर जेब में से दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर कच्चीगांव का कार्ड मिला, जिसमें उस व्यक्ति का नाम राकेश संतोष, उम्र 35 साल और पता राजेश भाई की चौल, रूम नंबर 3, कच्चीगांव, नानी दमन देखने में आया। बाद में व्यक्ति को सारवार हेतु मरवड अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया और लाश को मरवड अस्पताल के मॉर्ज रूम में रखा गया। इस व्यक्ति के बारे में आसपास के विस्तार में काफी पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति का कोई संबंधित या रिश्तेदार नहीं मिला है। मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान अंतर्गत वलसाड़ उमरगाम नगर पालिका के अधिकारियों के साथ वन आदिजाति मंत्री ने की बैठक। वन आदिजाति विकास विभाग के राज्य कक्षा के मंत्री श्री रमन लाल पाटकर ने मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान अंतर्गत वलसाड़ नगर पालिका के पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बैठक बुलवाई। साथ ही उमरगाम नगर पालिका के पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बारिया समाज हॉल में भी एक बैठक बुलवाई थी। बैठक के बाद मंत्री और महानुभाव द्वारा कन्याशाला में शुरू किए गए कोविड आइसोलेशन सेंटर का दौरा किया गया और बैठक में मंत्री श्री द्वारा बताया गया कि यह अभियान कोरोना मुक्त शहर बने, समग्र राज्य कोरोना महामारी से बाहर आए, ऐसे आशय के साथ शुरू किया गया है। इस अभियान के चलते आरोग्य और परिवार कल्याण बोर्ड और शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण बोर्ड की सूचनाओं के अनुसार सबको साथ मिलकर हर रोज की कामगिरी करने के लिए बताया। कर्मियों जेने આપણે વિવેકા મંડળ કહીએ છીએ, સ્વામી વિવેકા મંડળના સભ્યો પણ એમાં જોડાયા છે। એ આરોગ્ય સમિતિના ટીમ કરી નાખી એટલે 15 કાર્યકર હોવા જોઈએ અને એક ઘરે જઈને કયા પ્રકારનો દર્દી તમને મળ્યો છે એને નોંધ કરે। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। तोकते तूफान के चलते पहाड़ी तहसील हाई अलर्ट में, किनारे विस्तार पर स्थित लोगों को किया जा रहा है स्थलांतर। तूफान की आगाही के चलते दीव कलेक्टर सलोनी राय ने बुलवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। संघ प्रदेश के वहीवटी तंत्र द्वारा तोकते तूफान के चलते सावधानी बरतने हेतु लिए गए कई तरह के निर्णय। वलसाड़ जिले के पहाड़ी पंथक में तोकते तूफान की वजह से जोरों से हुई बारिश। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल